Hello friends, welcome to Achievers Educare. Today's topic is hydrocarbons, organic chemistry. Chemistry broadly is divided into two parts, organic, inorganic chemistry. So far, till your 9th standard, you have done inorganic chemistry. Today, we will be introducing ourselves to a new family of compounds called organic chemistry. Organic. The word organic means what? Present in organisms, or which organisms can consume directly. For example, if you go to your kitchen, you see various, masalas in your kitchen, right? All these are what? Chemicals. Your glucose is a chemical. Your nimbu, lemon, citric acid we say, right? Your imli, tamarind, yes, tartaric acid. When you consume milk, that is what? Lactic acid. So basically what you are doing, you are consuming acids, base, salts, and these are all organic. Your system can easily consume these particular chemicals. So we will introduce ourselves to a new family of compounds called hydrocarbons. The name itself, hydrocarbons. So basically what are hydrocarbons? The compounds containing carbon, hydrogen and oxygen. They are all covalently bonded. What is a covalent compound? What is a covalent bond? There were two types of bonds if you remember. One was electrovalent, ionic bond, and one was covalent bond. So what is covalent bond? A bond formed by sharing of electrons. So when the electrons are shared, not given and taken, so these compounds are called covalent compounds or covalent bonds. So carbon has a very specific property, Carbon, if you see carbon has 4 electrons. You have done your periodic element chapter and there you saw carbon is a 4th group element. 4th group means 4 electrons in the outermost shell. So if I have carbon, 4 electrons in the outermost shell, 1, 2, 3, 4, it is very difficult for this carbon to give or take electrons. So what this carbon does is sharing. And this unique property of carbon of sharing electrons and forming chains of long chains it forms, cyclic, non-cyclic. So these carbon atoms have a very unique property and this property is called catenation. Remember, what is catenation? A unique property of carbon by which it forms long chains of covalently bonded compounds. This is called catenation. So, I take an example of this carbon. I have 4 hydrogen atoms with me. So, what this hydrogen atom has? This hydrogen atom has 1 electron. So, this carbon shares 1 electron with this hydrogen. Same way, 1 hydrogen here, 1 hydrogen here and the other hydrogen here. So can you see this carbon formed a covalent bond with 4 other hydrogen atoms? Yes, this is covalently bonded compound. This property of carbon has given a new branch in chemistry called organic chemistry or hydrocarbons, organic compounds. So this is called electron dot formula. Electron dot formula, and this is very simple my friends. You can always form it because you have done your covalent compound. Suppose there are 2 carbon, what will you do? What will you do if there are 2 carbons? Let us see. If there were 2 carbons, carbon, carbon, okay, so how many electrons it has? 1, 2, 3, 4. It has 1, 2, 3, 4. Can you see? One bond this carbon atom will form. What will happen to this? It forms one bond with hydrogen, one bond with hydrogen, one bond with hydrogen, one bond with hydrogen. Is it clear? So it forms, none of the electrons of carbon will be left. This is a compound again. So this is called electron dot formula. So carbon has this unique property of forming long chains
It can have a very long chain, and this property is called catenation. Before going ahead with organic compounds, let us see the family. So this is a family of hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन के दो बच्चे हुए, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. एरोमा मींस खुशबू वाले. इत्तर खुशबू है ना. कुछ कंपाउंड्स दे आर वेरी एरोमेटिक इन नेचर. दीज आर साइक्लिक और बेंजीन. इसका फॉर्मूला होता है C6H6. वंडरफुल. वी विल नॉट टॉक अबाउट दिस चाइल्ड. We will talk about this child in higher standards. We will talk about this child, aliphatic hydrocarbon. This aliphatic hydrocarbon, again इसके दो बच्चे हुए. एक बच्चे का नाम हुआ unsaturated hydrocarbon और एक बच्चे का नाम हुआ saturated hydrocarbon. ये saturated hydrocarbon, ये unsaturated hydrocarbon. ये दो बच्चे हुए. इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के वापस से दो बच्चे हुए जिसका नाम हुआ अल्कीन्स, अल्काइंस, और इस बच्चे का नाम हुआ अल्केन. ये एक फैमिली हो गई. ये फैमिली आगे बढ़ती गई. सो आई अगेन रिपीट, हाइड्रोकार्बन के दो बच्चे एलिफेटिक, एरोमेटिक. एलिफेटिक के दो बच्चे सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, और अनसैचुरेटेड के दो बच्चे अल्कीन्स और अल्काइंस. ये इनका सरनेम है एन, इन, आइन. जितने ये फैमिली के मेंबर्स होंगे सबका नाम होगा एन सरनेम से. समझो. वी टेक एन एग्जांपल ऑफ वन कार्बन. वन कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन आ सकता है फ्रेंड्स? 4 आ सकता है. और इसको बोलते हैं मिथ. इसका सरनेम क्या है? एन. अगर दो कार्बन हुए इसके साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे? कार्बन पकड़ो, 1 2 3 4. कार्बन पकड़ो, 1 2 3 4. हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन. सो कितना हुआ ये एक कार्बन हुआ और 4 हाइड्रोजन हुए. ये दो कार्बन हुआ और 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन. अगर मैंने 3 कार्बन लिया तो 1 2 3. लेट अस सी. कैच दिस कार्बन. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. किसी भी कार्बन को 5 बॉन्ड या 3 बॉन्ड नहीं होना चाहिए. सो हाइड्रोजन. दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. आपको थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला बताया था. दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. अब ये देखो 3 कार्बन और हाइड्रोजन कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8. इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. सबका नाम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और वो क्या था? इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला. करेक्ट. हम लोग नेमिंग पे ध्यान दे रहे थे. अल्केन. सो एक कार्बन वाला मीथेन होता है, 2 कार्बन वाला इथेन होता है, 3 कार्बन वाला प्रोपेन होता है, 4 कार्बन वाला ब्यूटेन होता है, 5 कार्बन वाला पेंटेन होता है, 6 कार्बन वाला हेक्सेन होता है, 7 कार्बन वाला हेप्टेन, कोई सेप्टेन भी बोलता है, हेप्टेन होता है, 8 कार्बन वाला ऑक्टेन, 9 वाला नोनेन, 10 वाला डेकेन, 11 को हम नहीं कंसीडर करते, और 12 वाला डूडेकेन. और भी बहुत आगे आगे बहुत कार्बन एटम्स होते हैं, बट हमको हमारी फैमिली याद रखनी है. 1 कार्बन वाला मीथेन, 2 वाला इथेन, 3 वाला प्रोपेन, 4 वाला ब्यूटेन, 5 वाला पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन एंड डूडेकेन 12 वाला. ठीक है. अब अगर मुझे ये वाला अल्केन्स आया तो अल्कीन्स अल्काइंस भी आना चाहिए. सबसे पहले अल्केन्स सिंगल बॉन्ड कंपाउंड्स होते हैं, ये डबल बॉन्ड होते हैं, और ये ट्रिपल बॉन्ड होते हैं. डबल बॉन्ड किसके बीच में? कार्बन कार्बन के बीच में. कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड. सो दीज आर सिंगल बॉन्ड्स. डबल बॉन्ड, ट्रिपल. डबल ट्रिपल होने की वजह से अनसैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड मतलब जिंदगी में और चाहिए, और चाहिए, बिकॉज डबल बॉन्ड है ना, छोड़ देंगे. आगे चल के हम लोग इसके केमिकल रिएक्शंस देखेंगे.
तो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सो फ्रेंड्स, अगर मैं मिथीन बोलूं तो पॉसिबल है? नहीं है, कार्बन तो एक ही है, तो डबल बॉन्ड दूसरा कार्बन के लिए कहां होगा? तो मिथीन नहीं होता है, इथीन हो सकता है, क्योंकि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आया। अब ये कार्बन को कुछ पकड़ो, 1 2 कितने बॉन्ड बचे? 2 बचे। ये कार्बन को बचो 1 2 कितने बचे? 2 बचे। हाइड्रोजन ले लो, इसका नाम क्या होगा? इथीन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C2H4। प्रोपीन हो सकता है? हो सकता है। कैसे होगा? कार्बन कार्बन कार्बन, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, दो नहीं, एक ही डबल बॉन्ड। चलिए काउंट करिए, 1 2 3 4, काउंट करिए, 1 2 3 4, काउंट करिए, 1 2 3 4। इज इट करेक्ट? एवरी कार्बन यू हैव टू काउंट द बॉन्ड्स, न तो 4 से ज्यादा न 4 से कम। सो हाउ मेनी हाइड्रोजन यू विल सी? तो C3H6। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम इथीन था, ये इसका सरनेम चेंज नहीं होता है, इसका नाम क्या होगा? प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, यस करेक्ट, हेक्सीन, हेप्टीन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अल्काइंस में कैसे होगा? क्या मिथाइन पॉसिबल है? नहीं। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, जो कि नहीं है। सो मिथाइन पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। हम इथाइन पॉसिबल करते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड भी हम लोग 10th में नहीं करेंगे, एक आध एग्जांपल लेंगे खाली नॉमेनक्लेचर में। बाकी हम लोग सिंगल और डबल बॉन्ड पे ही हमारे 10th स्टैंडर्ड में कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इन योर 11th स्टैंडर्ड एंड हायर स्टैंडर्ड यू हैव अ डिफरेंट बुक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री 1 केमिस्ट्री 2 करके, वहां पर आपको बहुत कुछ पढ़ना है। तो ये सारे कंपाउंड जो डिटॉल, फिनॉल, आपके घर में जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो इसी फैमिली को बिलोंग करता है। इस फैमिली के बारे में और जानते हैं। एनी प्रॉब्लम इन दिस पार्ट? आई थिंक इट इज क्लियर। तो लेट अस गो अहेड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये मेंबर्स हुए फैमिली के। अब ये जो पूरा की पूरा सीरीज है, इसको हम लोग होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। व्हाट इज होमो? होमो मींस सेम, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज मतलब क्या? सेम होगा। क्या सेम होता है? आपने देखा था, हाँ, नेम एंडिंग सेम होता है ना, नेम एंडिंग सेम होता है। और क्या सेम होता है? आपने देखा था CH4, C2H, यस 6, करेक्ट ना, C3H8, ये था हमारा मीथेन, ये था हमारा इथेन, ये था हमारा प्रोपेन, करेक्ट? यस और नो? था ना? तो आप देखिए नेम एंडिंग सेम है। फिर जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। आप 1 डालो, यहां पर कितना आएगा? 2n+2। 1 डालो यहां पर, Cn2n+2 में 1 डालो, CH4, 2 डालो, C2H6। तो सबका एक जनरल फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2. Similarly, one more thing you should remember, in this homologous series, they all differ by CH2. याद रहेगा? They all differ by CH2. So what is a homologous series? Homologous series means set of compounds which have same name endings, same general formula, differ by CH2 group and so on and so forth. They have similar properties. अगर आप मीथेन, इथेन इनके बारे में सोचें, जैसे जैसे आप हायर कंपाउंड में जाओगे, ये गैस है, आगे जाओगे लिक्विड होगा, आगे जाओगे सॉलिड होगा। आपका वैक्स है ना, वैक्स, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, टार भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आपका पेट्रोल, केरोसिन, ऑयल, दे आर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिज्म में से मिला है। फॉसिल फ्यूल्स क्या है? क्रूड पेट्रोलियम। तो ये यहां से ही चालू हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना में। क्रूड पेट्रोलियम, फॉसिल कैसे बनता है? डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑर्गेनिज्म प्रेशराइज हुए, तो ऑर्गेनिज्म में क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड था। आपको
आपको मिला, तो गैस वगैरह, तो जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होती जाएगी। याद रहेगा आपको? इज इट ओके? ये साइक्लिक कंपाउंड हम लोग नहीं करने वाले हैं, यही हम करेंगे, राइट? अल्कीन्स, अल्केन्स बहुत कुछ करना है आगे, पॉलीमराइजेशन करेंगे, आइसोमेरिज्म करेंगे, we will do in the next video. Thank you so much. Please subscribe our channel, like, share, please comment. Thank you so much.